پرگی زبان کے تعلق سے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ پرانی تبتی زبان سے نکلی ہوئی 16 بڑی زبانوں میں سے ایک پرگی زبان ہے، اور پرگی زبان کے بارے میں ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پرگی زبان پرانی تبتی زبان کی سب سے نزدیکی جانشین ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے تبتی زبان میں الفاظ کا جو تلفظ تھا، جیسا تلفظ تھا ویسا ہی تلفظ آج کے پرگی زبان میں پایا جاتا ہے، جبکہ تبتی زبان کے ذیلی دوسری زبانیں جیسے کہ جدید تبتی ہے یا کھم امدو ہے یا لداخی ہے، ان زبانوں میں وہ تلفظات کافی حد تک بگڑ چکے ہیں۔ تو اگر ہم پرگی زبان کی آغاز اور ارتقاء کی بات کریں تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پرگ میں یعنی کرگل میں آبادی کی شروعات کہاں سے ہوئی، کون سی قوم کہاں سے آئی اور کب آباد ہوئی۔ تو اس بارے میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے مون قوم آباد تھی، لیکن ان کی کیا زبان رہی ہوگی اس کے بارے میں تاریخی حوالے ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزرے۔ اس کے بعد تبت سے ہجرت کر کے آبادیاں پرگ میں آباد ہونے لگی، اور چونکہ ان کی زبان پرانی تبتی تھی تو وہی پرانی تبتی زبان یہاں پہ رائج رہی، اور اس کے بعد درت قوم ہجرت کر کے کرگل کے گرد و نواح میں آباد ہونے لگی، اور درت قوم کی زبان اور تبتی زبان کے اختلاط سے جو ہے نیا پرگی زبان کی شروعات ہوئی۔ تو اگر ہم لسانی اعتبار سے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرگی، بلتی اور لداخی یہ سب سائملٹینیسلی تقریباً ایک ہی عصر میں ان کا ارتقاء ہوا ہے۔ پوری طرح سے حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے کہ کس زمانے میں اس زبان کا ارتقاء ہوا، کیونکہ زبان کا ارتقاء آغاز ہونے میں کئی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ بہرحال پرگی زبان میں شینا دردی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ دردی زبان کے اختلاط سے ہی پرگی زبان وجود میں آئی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم مثال لیں تو دنوں کے نام اگر تبتی زبان میں دیکھی جائے تو کچھ اور نام ہیں، جیسے کہ اتوار کو وہ لوگ نیما کہتے ہیں، اور سوموار کو پیر کو وہ لوگ زوا کہتے ہیں، جبکہ پرگی میں اتوار کے لیے عدید اور پیر کے لیے چندرال اور اس طرح سے ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، جو سارے کے سارے سنسکرت نام ہیں اور وہ شنا کے توسط سے پرگی میں آئے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ ملے گا ہمیں شنا دردی زبان سے جو پرگی میں آئے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف مقامات کے نام، گاؤں کے نام، جگہوں کے نام، چراگاہوں کے نام، ایسے بہت سارے نام پرگ میں شنا کے ہی ملیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانی تبتی زبان میں بہت سارے الفاظ شنا کے در آئے ہیں۔ تو شنا قوم کے اختلاط سے ایک نسلی اختلاط ہوا، نسل مخلوط ہوئی یہاں پرگ میں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ زبان بھی مخلوط ہو گئی اور ایک لچکدار اور خوبصورت زبان یہاں پر وجود میں آئی، جسے پرگ علاقے کے نام کی وجہ سے پرگی کہا جانے لگا۔ پرگی میں چونکہ شروعات میں ادبی کوئی خزانہ نہیں ہے لکھا ہوا، شروع کے سالوں میں اگر ہم دیکھیں شروع میں یہاں پر صرف لوک گیت اور لوک کہانیاں وغیرہ ہیں جو ہمارا ادبی اثاثہ ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بلتستان سے شاعری اور ادبیات کی شروعات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بلتستان سے یہاں پرگ میں ادب اور شاعری پہنچ جاتی ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی پرگ میں ادب اور شاعری کی شروعات ہوتی ہے۔ تو پرگ میں جو تحریری ادب ہے اس کا جو ہے عرصہ بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی غالباً یہی 50-100 سال پہلے سے ہی یہ شروع ہوئی ہے پرگ میں تحریری ادب کی، جبکہ لوک ادب کا جو اثاثہ ہے سینکڑوں سال پرانا ہے۔ اب پرگ میں تحریری ادب کیوں وجود میں نہیں آیا، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ پرگ جو ہے ایک سہ راہے پہ ہے،
यहाँ سے चाइनीज़ तुर्किस्तान की तरफ भी रास्ता जाता है, सिल्क रूट पर पड़ता है, यहाँ से बल्तिस्तान की तरफ से भी रास्ता है और कश्मीर की तरफ से भी रास्ता है। तो यहाँ पर बहुत सारी तहज़ीबों का एक इख्तिलात का एक जगह है, मखलूत होने की एक जगह है। तो इन सारी तहज़ीबों के असरात जो है बार बार इन पर पड़ते रहे, तो इस वजह से भी पुर्ग की अपनी एक अलग से तहरीरी अदब की शिनाख्त नहीं हो पाई। दूसरी वजह यह है कि पुर्गी कौम जो है वो नस्लन ऐसा वाक़या हुआ है कि वो उन्होंने किसी की भी ग़ुलामी कबूल कभी नहीं की। यहाँ पर चूँकि सराहे पर था, बहुत सारे काफ़िले, बहुत सारे हमलावर यहाँ से आते जाते गए और इन्होंने इन इलाक़ों को ताराज किया और कभी भी उन हमलावरों की ग़ुलामी इन्होंने कबूल नहीं की, तो हमेशा बगावत पे उतर आते रहे। तो इस वजह से यहाँ पे जंग व जिदाल की सूरत हाल बहुत मुद्दत तक रही और यहाँ पे कत्ल व गारतगिरी और तबाही की सूरत हाल बहुत मुद्दत तक रही। इस वजह से भी यहाँ अदब जो है पनप नहीं पाया। तीसरी वजह यह है कि ये इलाक़ा काफ़ी दुशवार गुज़ार है, जोग्राफियाई लिहाज से दुशवार गुज़ार है। यहाँ लोगों के गुजारे के लिए बहुत मुश्किल से उनको मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऐसे में जमालियाती हिस्स जो है लोगों में बेदार कम हुई। तो इसके मद्द मुकाबिल अगर हम बल्तिस्तान में देखें, बल्तिस्तान का इलाक़ा ज़रख़ीज़ इलाक़ा है, वहाँ पर लोगों का गुज़र बसर बहुत अच्छी तरह से होता है और मौसम भी बहुत अच्छा है। उस वजह से वहाँ पे जमालियाती हिस्स बहुत पहले हमें बेदार दिखाई देता है और वहाँ पे अदबियात बहुत पहले तख्लीक़ होती है। तीसरी वजह यह है कि यहाँ के जो इलाक़े थे छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए थे। अगर हम नज़दीकी तारीख़ में देखें, जैसे सोत में एक अलग राजा था, चिकटन में एक अलग राजा था, द्रास इलाक़े का अलग राजा आप देखें, सुरु करसे का एक अलग राजा था। तो छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए थे जो हमेशा किसी न किसी जंग से, किसी न किसी हमले से नबरद आज़मा होते रहते थे और ख़ुशहाली भी बहुत कम थी। इस वजह से वो शायरी और अदबियात की सरपरस्ती नहीं कर पाते थे। जबकि अगर हम बल्तिस्तान में देखें तो वहाँ पे खुशहाली था, इसी वजह से सरकारी जो है सरपरस्ती हासिल होती थी अदीबों और शायरों को। इस वजह से वहाँ अदब बहुत जल्दी पनप पाया। तो उसके बाद जब बल्तिस्तान के रास्ते से जब 13वीं सदी और 14वीं सदी में यहाँ इस्लाम की आमद हुई, इस्लाम के आमद के बाद यहाँ पे तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ, फ़ारसी पढ़ा जाने लगा, अरबी पढ़ा जाने लगा और लोगों को जो है फ़ारसी और उर्दू अदबियात से रोशनासी हासिल हुई। लोग फ़ारसी और अरबी अदबियात से रोशनास हुए, वो पढ़ने लगे उर्दू के तवस्सुत से या फ़ारसी के तवस्सुत से, ये शायरी और अदबियात पढ़े जाने लगे। तो उस वक़्त से यहाँ पे शायरी की शुरुआत हुई। तो उसके बाद नसर निगारी तो बहुत ही आप कह सकते हैं कुछ ही दहे हुए हैं जहाँ पुरिक में नसर निगारी की शुरुआत हुई। अब माशाअल्लाह से पुरिक में सैकड़ों की तादाद में शोरा हैं, जिनमें जवान शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा है जो मुख्तलिफ़ किस्म के नए नए तजुर्बात करते हैं शायरी में। उर्दू शायरी की नक़ल में, उर्दू शायरी में जो तजुर्बात हुए हैं उन्हीं की तरह से यहाँ पर भी सिनफ़ी तजुर्बात, हैयती तजुर्बात किए जा रहे हैं। उर्दू हैयतों को यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जैसे मसनवी, रुबाई वग़ैरह लिखे जा रहे हैं। उर्दू नज़्म के ततब्बुअ में यहाँ पे नज़में लिखी जा रही हैं और नए मौज़ूआत और नए तसव्वुरात जो है और नए अलामात जो है पुर्गी शायरी में आने लगे हैं। इसके अलावा अफ़साने निगारी भी पुर्गी में बहुत हो रही है और यहाँ पर बहुत अच्छे और नए मौज़ूआत पर अफ़साने लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रामे भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोकल जो हमारा रेडियो स्टेशन है, यहाँ से पुर्गी में बहुत अच्छी क्वालिटी के मेयारी प्रोग्राम भी नशर हुए जा रहे हैं और पुर्गी में ख़बरों के 2 बुलेटिन भी बहुत मेयारी नशर हो रहे हैं। तो अब आज हम देखते हैं कि पुर्गी में कई एक शोरा जो है वो साहिब दीवान भी हैं, उन्होंने अपनी दीवान भी छापे हैं। तो हम देखते हैं कि पुर्गी का मुस्तक़बिल जो है वो तापनाक है। इसकी एक वजह ये भी है कि तिब्बती से निकले हुए दूसरी ज़बानों के मुकाबले में पुर्गी बहुत ज़्यादा ही लचकदार है। इसमें दूसरी ज़बानों के अल्फाज को जज़्ब करने की बहुत अच्छी सलाहियत है। हम देख सकते हैं कि अगर आप लद्दाखी और पुर्गी का तक़ाबुल करें तो लद्दाखी में
ये लचक बिल्कुल ही नहीं है, सख्त रवैया है दूसरी ज़बानों के अल्फाज को शामिल करने के बारे में। जबकि पुर्गी में बहुत सारे दूसरी ज़बानों के अल्फाज जो हैं इस तरह से शामिल हुए हैं, इस तरह से जज़ब हुए हैं कि किसी को महसूस ही नहीं होता कि ये दूसरी ज़बान के लफ्ज़ हैं। तो मिन जुमला इन ज़बानों में अंग्रेज़ी से बहुत सारे अल्फाज हैं, उर्दू से बहुत सारे अल्फाज हैं, अरबी से हैं, फ़ारसी से हैं और तुर्की जैसी ज़बानों से भी बहुत सारे अल्फाज पुर्गी में शामिल हैं। और ये जो दूसरी ज़बानों से जज़ब करने का सिलसिला जो है ये चलता ही है और चलता ही रहेगा, और इस तरह से इस ज़बान की ज़रख़ीज़ियत बढ़ती जाएगी और इस ज़बान का जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो बढ़ता जाएगा, और हम पुर्गी के मुस्तक़बिल के हवाले से इस तरह से बहुत ही पुरुमीद हैं।